Today we are continuing along with Science 1, chapter number 5 Heat, part 5th. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में. ये एक सॉल्ड एग्जाम्पल है. यहाँ पे उन्होंने दिया है कि इफ़ 80 ग्राम स्टीम जिसका टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको आइस स्लैब पे रिलीज़ किया जाता है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना आइस मेल्ट होगा एंड कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होने वाली है फ्रॉम स्टीम टू द आइस. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली. So first let us try to understand what is the question. If we understand the question properly, we can decide which formula to be applied in this situation. We will try to understand the question in two phases. First phase will be simplified and second phase will be along with the all technical details which they have given within the question. So first, they have said that we are having ice slab. This ice slab is melted. To melt the ice slab, we are having steam. So we all know if we are releasing steam on the ice slab, it will melt. So now there are two phases. First part, how much ice melts, and second part, how much energy is transferred from steam to the ice. Now let us go into technical details of this question. They have said that the ice slab that we are having is of temperature 0 degree Celsius. They haven't given us mass, that how much mass of ice is present. Now steam. Steam ka temperature which is given is 97 degree Celsius, and we are also having mass of steam. Mass of steam is 80 gram. So 80 gram steam of temperature 97 degree Celsius is released on the ice. Ice temperature is 0 degree Celsius. So the question is, how much ice will melt, and second part, how much heat energy will be transferred from the steam to ice. What exactly is happening inside this question? When ice will melt, we all know melting point of ice is 0 degree Celsius. So to melt the ice, steam will be giving out heat. The present temperature of steam is 97 degree Celsius. We have seen earlier in previous videos that heat exchange stops when temperature of both object, hot object and cold object, matches. So here also the heat exchange will stop when temperature of steam will reduce down up to 0 degree Celsius. So how temperature of steam will reduce down up to 0 degree Celsius? Steam's present temperature is 97 degree Celsius. When steam will start cooling down, it will convert into water. So there are now stages. In first stage, steam of 97 degree Celsius will convert into water of 97 degree Celsius. And in second stage, water of 97 degree Celsius will convert into water at 0 degree Celsius. So when temperature will become water at 0 degree Celsius, at this point of time, heat exchange will stop. Heat exchange is going to stop. So what is going to happen in this phase? In this phase, steam is converting from steam of 97 to water at 97, and in second stage, water at 97 to water at 0 degree Celsius. So in these two stages, steam is giving out heat to that ice slab. Ice slab will absorb this heat energy, and it will melt. So we are supposed to find two things. First thing is how much heat energy is transferred, and second, how much ice will. So यहाँ पे M of S का मतलब है मास ऑफ स्टीम. मास ऑफ स्टीम है 80 ग्राम्स. T ऑफ S का मतलब है टेम्परेचर ऑफ स्टीम. टेम्परेचर ऑफ स्टीम है 97 डिग्री सेल्सियस. M ऑफ I मतलब है मास ऑफ आइस. ये तो हमें फाइंड करना है. T ऑफ I है टेम्परेचर ऑफ आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस. L ऑफ F इज़ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसकी वैल्यू 80 होती है. LV लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसकी वैल्यू 540 कैलोरीज पर ग्राम होती है. एंड C का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की होती है 1.0. सो फर्स्ट जैसे हमने अभी देखा था कि
स्टीम जिसका टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस है वो आइस के साथ कांटेक्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, एंड दैट्स वाई स्टीम विल कन्वर्ट इनटू वाटर. सो स्टीम एट 97 विल कन्वर्ट इनटू वाटर एट 97 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे Q इक्वल्स टू M इंटू LV. यहाँ पे M ऑफ S का मतलब है मास ऑफ स्टीम एंड LV की वैल्यू रहेगी 540. सो M ऑफ S इज 80 इंटू LV दैट इज़ 540. 80 इंटू 540 इसको हम लोग कैलकुलेट करके भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आगे हम लोग 80 इस वैल्यू को कॉमन बाहर लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे 80 इंटू 540 को ऐसे ही अनकैलकुलेटेड फॉर्म में रखा है. ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1. वैसे ही सेकेंड स्टेज में वाटर ऑफ 97 डिग्री सेल्सियस विल कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे आके हीट एक्सचेंज रुक जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q2 इक्वल्स टू MC डेल्टा T. M की वैल्यू है 80, C की वैल्यू है 1. डेल्टा T दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है 97 माइनस 0 डेट इज़ 97. इसको भी हम लोग 80 इंटू 97 ऐसे ही फॉर्म में रख देंगे. ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे. Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 दैट इज़ 80 इंटू 540 प्लस 80 इंटू 97. जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे 80 ये दोनों वैल्यूज़ हमको कॉमन दिख रही है, तो हम लोग उसको कॉमन बाहर ले लेंगे. अंदर 540 एंड 97 इन दोनों को ऐड कर देंगे. 540 प्लस 97 विल गिव अस 637. 637 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 50960 कैलोरीज. अब हमको ये देखना है कि आइस कितना मेल्ट होने वाला है. सो आइस एट 0 विल कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू M इंटू LF. LF इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो Q की वैल्यू हमें प्रीवियस 2 स्टेप से मिली है जो है 50960. वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. M की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, इसलिए M के नीचे हमने एरो प्लेस किया है. 80 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी. सो M इक्वल्स टू 50960 अपॉन 80. इसका डिवीजन अगर आप करोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो हमारे बुक में दिया है फाइनल आंसर. लेट अस सी वन मोर अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल. लिक्विड अमोनिया को यूज़ किया है आइस फैक्ट्री में. यहाँ पे वाटर को कन्वर्ट किया जाता है आइस में. सो वाटर जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है इसको कन्वर्ट करना है हमें 2 किलोग्राम आइस में. सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कितना अमोनिया यूज़ हो जाएगा. लिक्विड अमोनिया कितना इवेपोरेट होने वाला है, कितना यूज़ हो जाएगा. लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया इसकी वैल्यू दी है 341 कैलोरीज पर ग्राम. इसका सॉल्यूशन जो फाइनल आंसर है वो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है, जो यहाँ पे आपको स्लाइड पे भी दिख रहा है. Liquid ammonia is used in ice factory to convert water into ice. In this process, liquid ammonia is going to evaporate. So the question is how much liquid ammonia is going to get evaporated. That is what we are supposed to find. Now let us go into the details. Water of 2 kg, that is mass of water is present. It is 2 kilograms. We are supposed to convert water of 2 kilograms into ice. So we are expected to cool down the water. In order to cool down the water, you need something which will take away heat from the water. So in this numerical, that very object or that very thing is liquid ammonia. Liquid ammonia is going to pull off the heat that is present within the water and it will cool down the water. Water will convert into ice. But the present state of ammonia, as they have given in the numerical itself, it is liquid ammonia. So when liquid ammonia will absorb the heat, when it will cool off the heat, it will evaporate. So the question is, how much grams of liquid ammonia will be evaporated in this process? So first, again, when we are converting water into ice, we all know the process's heat exchange must stop at one point.
freezing point of water is 0 degrees Celsius. So this process will stop when water will reach at 0 degrees Celsius. Rather, water will convert into ice and ice will be at 0 degrees Celsius. So again, there are two phases. Water present temperature they have given within the numerical is of 20 degrees Celsius. So when water of 20 degrees Celsius will cool down, it will convert into water at 0 degrees Celsius. And later, water at 0 degrees Celsius will convert into ice of 0 degrees Celsius. So this is where heat exchange will stop. Liquid ammonia is presently in the state of liquid phase or liquid state. The heat exchange will stop when it will match to 0 degrees Celsius of ice. So in this process, water will release the heat and this heat will be given to liquid ammonia. The liquid ammonia is going to evaporate and we are supposed to find out mass of liquid ammonia, how much will be evaporated. So let's see how to solve this question. So now m of w is mass of water जो दिया है 2 kg, इसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया है 2000 ग्राम्स. T of W इज टेम्परेचर ऑफ वाटर जिसकी वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस. M of I इट इज़ मास ऑफ आइस, ये रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, जो बुक में दिया भी नहीं है बाय द वे न्यूमेरिकल में. T of I इज टेम्परेचर ऑफ आइस, इसकी वैल्यू हमें दी है, ये ज़रूरी भी है, इसकी वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस. आगे है m of A. m of A तो हमें पता करना है, फाइंड करना है. m of A का मतलब है मास ऑफ अमोनिया, कितना अमोनिया इवेपोरेट होने वाला है. एंड LV ऑफ A मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया, ये गिवन वैल्यू है न्यूमेरिकल के अंदर 341 कैलोरीज पर ग्राम. L of F लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होती है. एंड C दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इसका वैल्यू 1.0 ये होता है. सो जैसे कि ये न्यूमेरिकल में हम लोगों को वाटर को कन्वर्ट करना है आइस में, सो वाटर का प्रेजेंट टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. सो वाटर एट 20 विल कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0. सो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे Q1 इक्वल्स टू MC डेल्टा T. M की वैल्यू है 2000, C की वैल्यू है 1, डेल्टा T चेंज ऑफ टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो है 20 माइनस 0 डेट्स वाई 20. तो इसका प्रोडक्ट आता है 40,000 कैलोरीज. ये हो जाता है हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड स्टेज में वाटर अभी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, ये अभी आइस में कन्वर्ट हुआ नहीं है. डेट्स वाई सेकेंड फेज में वाटर एट 0 विल कन्वर्ट इनटू आइस एट 0. इसलिए हम लोग अब सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे Q2 इक्वल्स टू M इंटू LF. M की वैल्यू अगेन 2000, LF की वैल्यू 80. इसका प्रोडक्ट मिलता है 1,60,000 कैलोरीज. ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे. Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 दैट इज 40,000 प्लस 1,60,000 कैलोरीज विल गिव अस 2 lakh कैलोरीज. So this is the amount of heat which is given out by water of 2 kilograms. So this heat will be given to liquid ammonia and on accepting this heat liquid ammonia will evaporate. So since liquid ammonia evaporate होने वाला है इसलिए हम लोग अलग फार्मूला यूज़ करेंगे Q इक्वल्स टू M इंटू LV. Q की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी 2 lakh कैलोरीज थी. M के नीचे हम लोग एरो प्लेस कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू को हमें फाइंड करना है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर अमोनिया इज 341. वो वैल्यू को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड अब उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड जाते वक्त वो डिवाइड हो जाएगा. सो M ऑफ A मतलब मास ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू 2 lakh कैलोरीज डिवाइडेड बाय 341. इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर वही मिलेगा जो फाइनल आंसर बुक में दिया है. Let us see which are important topics of this chapter. ये चैप्टर के कुछ important topics है latent heat of fusion as well as vaporization, anomalous behavior of water, Hope's apparatus,
मैंने कहा था एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एंड होप्स एपरेटस, ये 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स, अगर शॉर्ट न्यूमेरिकल होगा तो वो 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, एंड अगर लॉन्ग वाला न्यूमेरिकल है तो उसका वेटेज 3 मार्क्स का होता है। लेट अस सी क्वेश्चंस which appeared in board examinations. ये 1 मार्क के लिए MCQ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Vapor content in the air is measured using physical quantity called dash. If you refer our previous videos, you can definitely answer this question. And ये एक और क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए। ये एक न्यूमेरिकल है, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है बाय द वे, इसको आप अपने बुक में चेक कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। You can try solving this question. This one is very easy.